my dear student and my dear friends. Today in this video we are going to do the second question of exercise 3.4. So let's get started. So here in this question what is being said and what is being asked, इस question में क्या बोला है और क्या आपको find करना है. देखिए, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, if fraction reduces to 1 and it becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator. So what is a fraction? क्वेश्चन क्लियर है. इसमें क्या है कि अगर हम 1 क्या करते हैं न्यूमरेटर में ऐड करते हैं और 1 क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, डिनोमिनेटर में से, तो जो फ्रैक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और अगर सिर्फ हम सिर्फ 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, द फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 1 by 2. तो चलिए इसको करते हैं. तो लेट the numerator be x and denominator be y. So what this implies कि my fraction is in the form of x upon y. Okay, this is your required fraction in terms of what, x and y. Now according to the first condition is what, when numerator is being added by 1 and denominator is what being subtracted. Okay, and we are subtracting 1 from the denominator, so what it becomes. So according to the first condition, if we are adding 1 to the numerator, so it becomes what, numerator becomes what, x plus 1, and 1 is being subtracted from the denominator क्या है यहाँ पे, y है, y में से subtract कर रहे हैं हम क्या, 1, so it becomes what, 1. तो ये क्या बन जाता है हमारा 1. so ये आपका आ गया पहला पार्ट. now simplify this, simple, do the cross multiplication, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, so it becomes what, x plus 1 is equal to y minus 1. so simplifying it, x as it is, y transpose to this side, it becomes what, minus y. when I transpose this one to that side, so it becomes what, minus. So minus 1 and minus 1, it becomes what, minus 2. So this is your first equation. Okay, now move for the second condition. In second condition, what is being said, it becomes what, 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. So what will happen, your fraction, this is according to the first condition. Okay, and now according to the second condition, what is this, numerator will remain as it is, only 1 is being added to the denominator, so it becomes what, y plus 1. this will be equal to 1 by 2. so simplifying it, do the cross multiplication, so this will becomes 2x is equal to y plus 1. simplifying it further, writing in the standard form, so 2x minus y is equal to what, 1. this is your second equation. now we have to solve this question particularly by the elimination method, so we'll write these equations again. so my first equation is what, x minus y is equal to what, minus 2. this was my first equation, and second equation is what, 2x minus y is equal to what, 1. so this is your second equation. So we are going to eliminate by the eliminating the which variable, I will eliminate the variable y because the coefficient are what, same. so I will subtract the what, your equation number 2 from 1, or you can do 1 minus 2 also, 2 minus 1 also. Okay, I'm doing what, 1 minus 2. so what this becomes, the sign will change, this become minus, this will become what, plus, and this will become what, minus. so this will going to cancel out, and here minus 2x plus x, so it becomes what, minus x is equal to, this will be what, minus 2 and minus 1, so it will be what, minus 3. so this implies x will be equal to 3 क्योंकि माइनस और माइनस आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पे, this will cancel out and this will cancel out.
So the value of x is nothing but what? 3. Now you can use this particular value in any one of the equation. Okay, so I'm using this value in equation number 1. So equation 1 becomes, what will be your equation 1? It will be what? X minus y is equal to what? Minus 2. I'm writing again because it is not visible in this video. Okay, so here the value of x is what? 3. So it's a 3 minus y is equal to what? Minus 2. Simplified it further, so y will be equal to, कितना हो जाएगा यहाँ पे? It will be what? 3 plus 2. So this implies कि y is equal to कितना हो जाएगा आपका? 5. So you got the value of what? Y, as well as what? The value of what? X. So you are being asked what is a fraction. Therefore your fraction was x upon y. So simply substitute the value of x and y. X is equal to what? 3, and y was is equal to what? 5. So your required fraction is what? 3 by 5. So always write, because it's a word problem, write the answer in the conclusion. Hence the fraction is 3 by 5. Okay, now question number 2. It is being said कि 5 years ago Noori was thrice, underline the word thrice, as what? As old as what? Sonu. And 10 years later Noori will be what? Twice as old as what? Sonu. So how old are Noori and Sonu? ठीक है, so their present age being asked. ठीक है, कैसे बात करते हैं यहाँ पे? 5 years ago. 5 years ago का मतलब क्या है? 5 साल पहले. नूरी जो है वो थ्राइस है किसके? सोनू के एज की. और 10 साल बाद नूरी जो है कितनी हो जाएगी? इट विल शी विल बी व्हाट? ट्वाइस, मतलब दोगुने हो जाएगी किसके एज के? सोनू के. तो इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं? हमेशा पहले क्या लिखेंगे आप? उनकी प्रेजेंट एज अज्यूम करेंगे. ठीक है, सो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x ईयर्स. प्लीज यहाँ पे जरूरी है, आप जो भी यूनिट है वो जिसमें है उसमें होना चाहिए. यहाँ पे एज है तो किसमें होगी? ईयर्स में होगी. एंड लेट मी टेक व्हाट? प्रेजेंट एज ऑफ सोनू. सोनू की जो प्रेजेंट एज है उसको अज्यूम करता हूं मैं y ईयर्स. ठीक है, उसको अज्यूम करता हूं मैं y ईयर्स. ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? 2 पार्ट में कर लेता हूँ. पहले जो केस है वो क्या है? 5 ईयर्स अगो है. ठीक है, तो 5 ईयर्स अगो एक केस आपका यहाँ पर बनेगा. ठीक है, और दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे? आफ्टर 10 ईयर्स. सो आफ्टर 10 ईयर, सो व्हाट विल बी द एज ऑफ व्हाट? नूरी. यहाँ पे पहले मैं नूरी की बात करता हूँ. प्रेजेंट एज हमारी नूरी की क्या है? यहाँ पे x है. सो आफ्टर और बिफोर 5 ईयर्स नूरी की जो एज होगी, व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज? x है तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो उसमें से 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा? x माइनस 5 ईयर्स होगी. एंड व्हाट विल बी द एज ऑफ सोनू? सोनू की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो इट विल बी व्हाट? y माइनस 5 ईयर्स. ओके, सिमिलरली अब ये जो रिलेशन है मैं कब का फाइंड करता हूं? मैं 10 ईयर्स आफ्टर का. सो नूरी की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? नूरी की एज 10 साल बाद, अभी प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद क्या होगी? x प्लस 10 ईयर्स हो जाएगी. और वैसे ही सोनू की जो एज होगी, सोनू की जो एज होगी वो कितनी हो जाएगी? इट विल बी व्हाट? y प्लस 10 ईयर्स. अब ये तो हमने सिर्फ क्या फाइंड कर लिया? प्रेजेंट एज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी 5 साल पहले कितनी एज होगी और 10 साल बाद कितनी एज होगी. ओके, अब देखिए ध्यान से समझने वाली बात यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है? जो नूरी है
वो 3 टाइम्स है, थ्राइस एज ओल्ड एज व्हाट, सोनू। सो 3 टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, सोनू। ओके, सो नूरी की 5 साल पहले जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, x-5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सोनू की 5 साल पहले जो एज थी वो कितनी हो जाएगी, y-5। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x-5 इज इक्वल टू 3 × y क्या हो जाएगा, 3y, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। सो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब x को मैं इधर ही रखता हूँ, ये 3y को इधर ट्रांसपोज करता हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में, सो दिस विल बी व्हाट, -3y, और ये 5 इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा। सो ये क्या होगा, -15 + 5। सो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x-3y इज इक्वल टू -15 + 5। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -10। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब जो सेकंड कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर सेकंड कंडीशन में क्या बोला हुआ था कि जो नूरी है वो क्या होगी, ट्वाइस ओल्ड एज व्हाट, सोनू। जो सोनू है उसकी क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो अब 10 साल बाद नूरी की जो एज है वो क्या है, x+10, जैसे कि अभी हमने देखा था। उसके बाद में सोनू की जो एज होगी वो क्या हो जाएगी, y+10 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, यहाँ पे क्या होगा, x+10 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 2y, और 2 × 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, वेरिएबल से एक साइड लेके आते हैं, ये 2y को इस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस क्या होगा यहाँ पे, 2y इज इक्वल टू, ये 10 जो है ये ट्रांसपोज करूंगा दूसरी साइड में तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 - 10। सो योर इक्वेशन विल बी व्हाट, x-2y इज इक्वल टू व्हाट, 10। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें जो दोनों कंडीशन से इक्वेशंस मिल गई, चलिए मैं फिर से लिख लेता हूं यहाँ पे इक्वेशंस को। पहली जो इक्वेशन मिली वो मिली हमारी x-3y इज इक्वल टू क्या मिला, -10। जो दूसरी इक्वेशन मिली है x-2y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आपका, +10 है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। सो बेटर है मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे किसके कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे मुझे कोफिशिएंट दिख रहे हैं किसके, सेम, x के। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस। यहाँ पे अभी ये टर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे। नाउ यू आर हैविंग -3y और +2y, तो ये आपका क्या आएगा, -y इज इक्वल टू, यहाँ पे ही माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -10 और -10 कितना हो जाएगा, -20। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अब y की वैल्यू अभी हमें आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, x। अब इसको मैं क्या कहाँ यूज करूंगा, आई विल यूज इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन। या तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ या फिर मैं सेकंड इक्वेशन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू आई है इसको मैं यहाँ पे कहाँ पे यूज कर रहा हूँ, आई विल यूज इट इन दी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सो यूजिंग y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1, मैं 1 में यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, x माइनस, अभी देखिए 3 एज इट इज, y की वैल्यू जो है वो कितनी है यूज करनी है यहाँ पे, 20। सो ये क्या होगा, 20 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, -10। सिंप्लीफाई करते हैं इसको फर्दर, ये हो जाएगा x माइनस, ये कितना होगा यहाँ पे, 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। सो x विल बी इक्वल टू -10, यहाँ पे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 50 आ जाएगी। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्लीज पर्टिकुलरली इफ यू लाइक माई वीडियो, share it among your friends and subscribe my channel. Okay, now move further. So we'll write the answer in terms of what, the word, in words. So hence what, present age of नूरी। नूरी को हमने क्या माना था, x माना था ना, तो x की उसकी एज मानी थी हमने, कितनी होगी, इज व्हाट, x की वैल्यू कितनी आई, 50। तो नूरी जो है वो कितने हैं, 50 ईयर्स है, ओल्ड है। प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज व्हाट, 50 ईयर्स। एंड क्या है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू वो कितनी हो जाएगी, इज y कितना आ गया हमारा, 20 आया। सो इट विल बी व्हाट, 20 years. Hope so you have understood this particular. Give thumbs up and write in the comment if you have not understood this.
Okay. Now let's move to the question number 3. Okay. In this question, what is given? The sum of the digits. The sum of the digits of a 2-digit number. Important is what? 2-digit number is what? 9. Also, 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order. The meaning of reversing the order is what? We'll change the places of the digits. Okay. So now try to understand how we are going to deal with this question. So let me take it's a 2-digit number. Okay. So let the unit place digit as what? X, and tens place digit as what? Y. So in the expanded form, the number can be written as what? 10 into the digit at what? Tens place is what? Y, plus x into 1. Okay. So in this way we are already going to write. So okay, so how we are going to write it in the examination? So let unit place digit be x and tens place digit be y. Okay. Now the original number will be what? 10 into the digit at tens place plus x into the what? 1. So the original number will be what? 10y plus x. This is your original number. Let me write the original number as what? O n. Now after reversing your unit digit becomes what? Tens digit. So unit digit will be what? Y, and tens place digit will be x. So your reverse number will be 10 into, now the digit at tens place is what? X. So it will be what? 10x plus what? Unit place. This is what? Y. Now according to the first condition, what is given in the first condition? Pay attention over here. The sum of the digits, sum of what? Digits of 2-digit number. So now digits are what? X and y. So their sum is given as what? 9. Okay. So x plus y is equal to what? 9. This is your first equation according to the first condition. Now according to the second condition, what is the condition? The 9 times of the original number is equal to twice, means 2 times of the reverse number. रिवर्स नंबर को मैं r डॉट n से लेता हूं. अभी देखिए यहां पे 9 इंटू ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था? ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y प्लस x था. ओके, इज इक्वल टू 2 टाइम्स रिवर्स नंबर हमारा क्या हो गया था? इट इज व्हाट? 10x प्लस क्या हो गया यहाँ पे? y हो गया. अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं. कितना होगा यहाँ पे? 9 इंटू 10y कितना हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? 90y प्लस 9 इंटू एक्स करेंगे तो कितना होगा? 9x हो जाएगा. इज इक्वल टू 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20. सो इट विल बी व्हाट? 20x प्लस 2 इंटू वाई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2y. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो y के टर्म्स है मैं एक तरफ लेके जाता हूँ, ये y को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? 90y माइनस 2y इज इक्वल टू ये 20x एज इट इज, और ये 9 इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 9x हो जाएगा. सो 90 माइनस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 88. सो दिस इज 88y इज इक्वल टू 20 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 11. सो इट इज व्हाट? 11x. सो आई कैन डू फर्दर सिंप्लीफिकेशन. ये पूरा का पूरा 11 से डिवाइड हो सकता है. सो व्हाट आई कैन डू, ये हो जाएगा आपका 8y इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा आपका? x हो जाएगा. लेट मी टेक दिस एज व्हाट? सेकेंड इक्वेशन. ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन मेथड. Okay, so we'll write this second equation in the standard form. So I can write it as what? 8 minus ये 8y, यहाँ पे 8y को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x minus 8y is equal to what? 0. So I will consider this as what? Second equation. Okay.
Now consider the both equation at one place. So first equation was x plus y is equal to what? 9, and the second equation is what? X minus 8y is equal to what? 0. So this is your first equation, this is your second. Now first see whether the any coefficient in any variable are what? Same or not. So here I am finding the coefficient of x are what? Same. So what I will do, I will subtract the second equation from the first. So this will be what? Minus, this will become plus, and this will be what? Minus. Okay, so this will cancel out, so you will remain with y plus 8y. So it will be what? 9y is equal to 9 minus 0 is again 9. So the value of y will be what? 9 divided by 9. So this implies y is equal to, ये cancel out हो जाएगा, so y की value कितनी आ जाएगी हमारी? 1 आ जाएगी. Okay, so we got the value of what? Y. Okay, now what I will do, I will find the value of what? X by substituting this value of y in any one of the equation. So what I will do, I will substitute this in the equation number 2. So using y is equal to 1 in second equation. Okay, so you will get x minus 8y is equal to what? 0. So x as it is, the value of y is what? 1 is equal to what? 0. So x minus 8 is equal to 0. So x will be equal to what? 8. So we got the value of what? X. So the original number will be what? This x was, we are consider original as a what? Unit place digit, and this we consider as what? Tens place digit. So simply we can write this as what? Directly it is what? 18. Or you can use it in the original number, which was what? Y x 10y plus x. Okay, hope so you have understood this particular. If you understood this, please like and subscribe my channel. And okay, now let's move to the question number 4. So in this question number 4, Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. Okay, she asked the cashier to give what? Her rupees 50 and 100 notes only. तो वो 2000 रुपए निकालने के लिए गई है और उसने कैशियर को रिक्वेस्ट की है कि उसको कितने के नोट चाहिए? 50 रुपीज के नोट चाहिए और 100 के नोट्स ही चाहिए सिर्फ. सो मीना गॉट व्हाट? इन टोटल 25 नोट्स. टोटल उसने कितने नोट्स मिले? 25 नोट्स मिले. ठीक है, सो यू आर बीइंग आस्क्ड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड 100 सी रिसीव्ड. तो उसको कितने 50 के रिसीव हुए और कितने 100 के नोट्स रिसीव किए ये आपको पूछा है. सो व्हाट आई कंसिडर, लेट द नंबर ऑफ notes of rupees 50 be x. जो 50 के नोट हैं वो क्या है? x है. एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 100 बी y. जो 100 के नोट्स हैं वो क्या मानते हैं हम? y. अब देखिए मैं पहले क्या करता हूं, आई विल कंसिडर दी सेकंड कंडीशन. ये जो कंडीशन है, मीना गॉट टोटल कितने मिले हैं उसको? 25 नोट्स हैं. सो आई विल राइट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आई एम यूजिंग दिस एज व्हाट? फर्स्ट कंडीशन. ओके, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों के जो नोट्स का सम होगा, मतलब जितने भी 50 के नोट्स मिले हैं और जितने 100 के मिले हैं, उनका जो टोटल होना चाहिए वो कितना होगा? 25 नोट्स होगा. सो दिस विल बी माय फर्स्ट. अब बात करते हैं हम सेकंड कंडीशन की. अकॉर्डिंग टू दी सेकंड कंडीशन, वो कंडीशन हम कौन सी लेंगे कि टोटल अमाउंट जो विड्रॉ किया है, टोटल अमाउंट जो उसको विड्रॉ करना था वो कितना था? 2000. तो इसका मतलब क्या है कि 50 और 100 के नोट्स का जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना आना चाहिए आपका? 2000 आ जाना चाहिए. तो पहले अमाउंट इन 50 रुपीज. तो 50 रुपीज के नोट कितने हैं हमारे? x है. तो 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अमाउंट किस में आ जाएगा? 50 रुपीज में कितना अमाउंट है, प्लस 100 के जो नोट्स हैं उसको नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 कितने हमारे? y है. तो ये आपका आ जाएगा 100 नोट्स में कितना अमाउंट आ जाएगा. तो ये टोटल मिलाकर कितना होना चाहिए? 2000 होना चाहिए. ओके, दिस विल बी योर सेकंड कंडीशन. तो यहां पे क्या हो जाएगा? दिस विल बी व्हाट? 50x प्लस 100y इज इक्वल टू व्हाट? 2000. सो व्हाट आई कैन डू, मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर देता हूं. सो डिवाइडिंग इट दिस इक्वेशन बाय 50, तो 50 से डिवाइड करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. यहां पे क्या आ जाएगा? 50 इंटू 2 कितना होता है आपका? 100 होता है. सो यहां पे क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे कितना हो जाएगा? 50 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा आपका? 50
2 जो 100 होता है तो 40 हो जाएगा ये, ठीक है। तो दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन। अब हमें जो ये सॉल्व करना है वो किससे करना है, हमें एलिमिनेशन मेथड से। सो व्हाट आई डू, आई विल राइट दी ऑल दो बोथ इक्वेशन वंस अगेन। पहली इक्वेशन जो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 25 है, और दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 40 है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ओके ओके, नाउ व्हाट विल डू, नाउ चेक करेंगे कि क्या कोफिशिएंट किसी वेरिएबल के सेम है या नहीं। तो यहां पे x का कोफिशिएंट यहां पे दोनों जगह पे क्या है 1 1 है, तो हम क्या करेंगे x वेरिएबल को ही एलिमिनेट करेंगे। तो ये सिंपल क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस हो जाएगा। सो ये जो वेरिएबल्स ये कैंसिल हो जाएंगे। नाउ y माइनस 2y, सो दिस विल बी व्हाट माइनस y इज इक्वल टू 25, और यहाँ पे क्या है माइनस 40। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 में से इसको माइनस करेंगे तो पहले बड़ा नंबर 40 है तो साइन नेगेटिव रहेगा, तो 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया कितना बचेगा 1। सो व्हाट दिस इंप्लाइज, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू व्हाट 15, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 15 आ गई। ओके, सो विल यूज दिस वैल्यू in any one of the equation. So using y is equal to 15 in, let me use it in the equation number 1. मैं फर्स्ट इक्वेशन में यूज करता हूं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी देखिए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 25 है। सो x एज इट इज, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15 है, इज इक्वल टू कितना है आपका 25। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट 25 माइनस 15 which will be equal to 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया कितना बचेगा 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। सो व्हाट दिस इंप्लाइज कि x हमारा क्या था, हमारे 50 के नोट्स थे, और y क्या था हमारा नंबर ऑफ नोट्स ऑफ व्हाट ₹100। सो व्हाट आई कैन से फ्रॉम हियर, हेंस ठीक है, सी हैज रिसीव्ड 10 notes of ₹50 and 15 notes of ₹100. Hope so you have understood this question. Okay, now consider this fifth question as a practice question for you and comment the answers in the comment box. If you like my video, please share among your friends, like it, subscribe my channel and hit the bell icon for the latest video coming in the future.